الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عربہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہماری 43ویں میٹنگ ہے. تو سب سے پہلے سب کو ویلکم کہتا ہوں. تو اس کے بعد میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں سید صفدر حسین شاہ صاحب کو. وہ تلاوت کلام پاک پلیز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. بہاریں ہنسی اور گل مسکرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں تشریف لائے. بہاریں ہنسی اور گل مسکرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں تشریف لائے. ہوا ہے جہاں میں ظہور محمد زمانے میں چمکا ہے نور محمد. ہوا ہے جہاں میں ظہور محمد زمانے میں چمکا ہے نور محمد. مٹے روئے ہستی سے ظلمت کے سائے محمد جہاں میں تشریف لائے. بہاروں نے مسرت کے پھول بکھیرے ہوئے دور دنیا سے سارے اندھیرے. زمانے پہ رحمت کے بادل ہیں چھائے محمد جہاں میں تشریف لائے. بہاریں ہنسی اور گل مسکرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں تشریف لائے. پڑھ لیں اول و آخر اور الحمد شریف اور 3 بار قدسی پڑھ لیں کیونکہ ہمارے وہ ساتھی جن کی ڈیتھ ہوگی ان کے لیے ہم کلام پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا مانگیں گے. بسم اللہ الرحمن چیف رینٹ افسر محبوب سلطان صاحب ان کی والدہ تھی اور چیف رینٹ افسر صاحب جو آئی ایس آئی میں ان کا اور ہمارے ساتھی جی جی اللہ العالمین ہم نے جو پاک کلام پڑھا ہے اس میں جو کمی بیشی کوئی غلطی ہوئی اللہ تو معاف فرما اس کو بارگاہ میں قبول اور منظور فرما.
اے رب العالمین اس پاک کلام کا سبب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، حضور قبول اور منظور فرمائے۔ میرے آقا کے صدقے اس کا ثواب 1,24,000 پیش قدم برپائیتن پاک ہمارا امام 14 مسعود چاریہ صحابہ اکرام تبع تابعین امہات المومنین کی روح پاک کو پہنچا۔ یا اللہ حضور پاک کے صدقے اس کا ثواب کربلا شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور۔ یا اللہ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمارے دوست احباب جتنے بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے لیے یہ اس کا احسان ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول اور منظور۔ یا اللہ ہمارے دوست جو جن کے نام لیے گئے ہیں یا جن کے نام نہیں لیے گئے، جو بھی حاضرین محفل کے رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بھی مسلمان مرد مسلمان عورتیں فوت ہو چکی ہیں، اے اللہ ان کے لیے یہ احسان ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے درگزر فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیوں معاف فرما۔ جیے مسلمان مرے مسلمان خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ ہر خلقہ نور عرشہ وقاسم رزقہ وافضل الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ صاحب۔ یہاں غمیاں وہاں خوشیاں، اللہ پاک مطلب کہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی لوگ ادھر بیٹھے ہیں سب کو اپنی زبان میں رکھے، زندگی دے، تندرستی دے، خوشیاں دے۔ یہ غموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے ایک ساتھی رانا اشرف صاحب عمرہ کر رہے ہیں، وہ بھی خبر لے کے آئے ہیں، مطلب کہ ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خوشیاں دے۔ اسی طریقے سے سر قلی اظہر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ابھی DHA میں 3 دن پہلے گھر بھی تھا، ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کا رہنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ بہت سارے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے، تو ایک انٹروڈکشن کا ہو جائے تاکہ ہم ان کے سارے پتہ چلے کہ کون کون ہے۔ سر پلیز ویلکم۔ میں ایکس چیف ٹیک اور سروس کے بعد میں نے گورنمنٹ آف پنجاب جوائن کی، ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن کمرہ بنا کے جاؤ، اور یہ آپ کے ساتھ دوسری میٹنگ۔ میرے سے آگے سر ویلکم، بہت ویلکم۔ اب آگے نکل ویلکم سر۔ اوپر نکل۔ شہزاد جی پاک فضائیہ کا اتنا سا رائٹر ہوں، ویسے چیف ٹیک ریٹائرڈ ہوں، 25 کتابوں کا مصنف ہوں، لیکن یہ منہ سیدھا کرا، منہ سیدھا کرا۔ آپ ہمارے بلاتے رہتے ہیں، فون بھی بند رکھتے، صبح سے فون بند ہے ان کا۔ میں بہت ساری کالیں کی، میں کہا شاید پوسٹ پون نہ ہو گیا وہ پروگرام، لیکن پھر بھی میں آ گیا ہوں۔ میں کہا چلو میں دوستوں کو مل لوں ذرا، تو مہربانی آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ چیف ٹیک فضل محمد ادر شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ ابھی SK10 میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ سید محمد علی عاشق آج کے سروس کر رہا ہوں اسپیشل پارٹ پہ لاہور کے عاشق۔ اس کی بنا بولا کرو، بولا کرو۔ گراؤنڈ کا بیٹر ریٹائر اور دادر آباد میں رہے۔ اچیومنٹ افسر سلطان میں ہوں، ایڈمن اسسٹنٹ، ناؤ ایڈمن افسر فضائیہ انٹر کالج لاہور۔ ویلکم سر، ویلکم۔ تھینک یو۔ میں سر ایکس چیف ٹیک ستر شاہ گراؤنڈ سگنل اور ادھر لاہور DHA بننے میں آفیسر چھوٹا سا۔ شاہ صاحب نے ساری سروس ISI میں ہی گزاری ہے، آج ان سے مطلب 5-4 منٹ ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ ان کا مطلب میں نے تو 30 سال ISI میں گزارا۔ ایکس چیف ٹیک خالد پرویز ریڈار فٹر، آشانہ میں رہتا ہوں، ابھی سب انسپیکٹر رنگ روڈ سے ریٹائر ہوا ہوں۔ ویلکم سر، ویلکم۔ چیف ٹیک ارشد علی گل، GSO ہاشمی صاحب اور فرق صاحب یہ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً تمام ہی انٹری فیلو جن کے ساتھ ہم مطلب آپس میں گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ماشاءاللہ سب ہی بہترین دوست ہیں۔ اور آج کل میری رہائش ایئرپورٹ کے پاس ہے، DHA فیز 8 کے ساتھ، وہاں میری رہائش ہے۔ اور
तकरीबन 1 साल हो गया अरबा के साथ चल रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। ये फिनांस कमेटी के हमारे मेंबर भी हैं अरबा फाउंडेशन के। सुबह तो ना कर रिटायर्ड चीफ ऑडिटर अफसर सुल्तान अली सर, सेक्रेटरी लाहौर अरबा फाउंडेशन, और GC टेप था आजकल बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में हूँ गुलबर्ग 3 में, और हैश मेरी है अलफीज गार्डन फेज़ 1 GT रोड। मिर्ज़ा असदुल्ला सईद रिडार फिटर में अटेंड था और 1980 में इनरोल हुए, 1998 में हमने छोड़ दिया। शकूर साहब मेरे एंट्री फेलो है। मैं करीम ब्लॉक के लामा इकबाल कॉलोनी में याद कर रहायशी हूँ और अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और हमारे अरबा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अरबा फाउंडेशन पाकिस्तान। जी मैं कोऑर्डिनेटर अजहर रिटायर्ड हूँ ट्रेन फाउंडेशन में और अली पार्क में रहा। सर फिनांस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, फिनांस कमेटी को सर लुक आफ्टर करते हैं अरबा फाउंडेशन की फिनांस कमेटी। चीफ ऑडिटर अफसर राना लियाकत 8205 एंट्री, रिटायर्ड 2007, 15 साल NTDC वापडा को दिए, अभी जनवरी में रिटायर हुआ और हैश मेरी अली पार्क में अपना घर। चीफ ऑडिटर अब्दुल शकूर रिटायर्ड रिडार फिटर, उसुल्लाह मेरा एंट्री फेलो हैं। 2007 में मैं यहाँ पर एडवान लाहौर से रिटायर्ड हुआ था। अभी यासिन टाउन है, गाजी रोड पे रहायश है। प्रेजेंटली आई एम ऑन वेकेशन फ्रॉम सऊदीया, बिन लादेन में काम कर रहा हूँ वहाँ। थिंक स्पेशल हॉस्पिटल UPS वगैरह इलेक्ट्रीशियन। माशाल्लाह सर, वेलकम। आपने कीमती टाइम निकाला, हमने रिक्वेस्ट की थी तो बड़ी खुशी हुई सर आपको मतलब देख के। वेलकम। शकूर साहब हमारा एक रिडार्डियन का ग्रुप है, उसके पायनियर भी है, उन्होंने बड़ा और वो बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह चल रहा है। चीफ ऑडिटर मोहम्मद अब्बास रिटायर्ड फिटर 2001 में रिटायर हुआ था, अभी अली पार्क में माशाल्लाह। असगर अली असगर 1993 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद मैं स्पीकर से ज्वाइन कर ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और रहायश किधर आजकल सर? पाकर सोसाइटी में। अच्छा पाकर में, ठीक 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 जी, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी की और जगह पे मीटिंग थी इसी टाइम थी, लेकिन मेरे भाई साहब ने कहा मैं तो ये अपने जी थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। तो वो मेरी मीटिंग होती है हर महीने, हर पहली इतवार होती है वहाँ पे। रिटायर्ड वारंट ऑफिसर अब्दुल वाहिद फार्मा में 2008 में रिटायर्ड हुआ था। आजकल बताओ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल स्पेशल ब्रांच। जी सर, आजकल सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दूसरे सूबों में जाके एक कोर्स करवा रहे हैं स्पेशल ब्रांच वालों को, जिसमें मतलब है कि सारे एग्जीक्यूटिव अफसर यानी SP SSP ASP लेवल के लोग कोर्स करते हैं, इनकी ट्रेनिंग है। और कराची में बाई जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मेरे ख्याल में गालमा 6-7 कोर्स ये 12 कोर्स कराएं UNO का प्लेटफॉर्म। चीफ ऑडिटर रिटायर्ड लोअर रिडार फिटर। वेलकम। बस आगे उधार AW रिटायर्ड इमरान 2016 में रिटायर्ड हुआ था। आजकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज एडमिन जॉब है। जी माशाल्लाह। टीचर ट्रेनिंग थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन ओवर हो गया है, बड़ी खुशी हो रही है मेरे ख्याल में। मतलब है कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो देख के वाकई खुशी फील कर रहे होंगे, जो बार बार आते हैं उनको भी खुशी हो रही होगी कि ये वो प्लेटफार्म है कि जिसमें हर महीने के पहले संडे को जो मीटिंग होती है, इसमें हम बहुत सारी खुशियाँ लेके जाते हैं। खुशियाँ किसी मामलात में नहीं होती, सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप आपस में बैठते हैं और जब गपशप करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और ये खुशी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं मिल सकती जो अभी मिल रही है आपको, किसी भी रिश्ते में। अभी पिछले दिनों में हमारे प्रेसिडेंट ने अपने ट्रेड फेलोज की गैदरिंग की थी, तो वहाँ पे हम गए। अल्लाह जानता वो भी एक ना दीदनी मूवमेंट थी, दीदनी जी, बहुत दिली खुशी हुई। मतलब कि माशाल्लाह बड़े पुराने सीनियर साथी हमारे जिनको हमने देखा और उनकी गपशप देखी और उनकी प्यार देखा, बहुत दिल खुश हुआ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब एक महीने बाद मीटिंग होती है तो इसमें अपनी ज़ात के लिए ये टाइम है स्पेशल, इसके लिए टाइम जरूर निकाला करो ताकि हम मतलब है कि आए, मीटिंग भी अटेंड करें और हम एक दूसरे के दुख दर्द भी बांटें। ये दुख दर्द बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ भी दूंगा
کہ ابھی پچھلے دنوں میں جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے وہ ISI کے جو افضل صاحب تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 25 تاریخ کو ڈیتھ بھی اس دن ہوئی جس دن آپ کی سب پارٹی تھی، اور ان کے بیٹے کی مجھے کال آتی ہے کہ یہ ہو گیا، حالانکہ مطلب کوئی اس 2 سال سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، لیکن وہ سارے معاملات مطلب ہے کہ پھر سمجھ لو عربا فاؤنڈیشن نے ہی دیکھی، ابھی آگے الحمدللہ پینشن کا بھی ہم نے ہی دیکھنا سارا معاملات، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا میٹھا اور اچھا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو جب بھی جس معاملے میں بھی جس نے بھی پکارا ہے اس نے اس کو خوشیاں دی ہیں، سکون دیا ہے. تو لہٰذا مطلب ہے کہ پلیز مطلب کوشش کیا کرو کہ اس خوشیاں بانٹنے میں اور خوشیاں لینے میں ضرور مطلب کہ حصے دار بنا کرو، اور یہ بہت ہی پرخلوص شفافیت والا اور اچھا پلیٹ فارم ہے، اس میں مطلب کہ تشریف ضرور لایا کریں، اور جو لوگ آئے ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا سر کوآرڈینیٹر صاحب کی کہ وہ اپنے خیالات کا سب کو ہم 2-2 4-4 منٹ دیں گے انشاءاللہ، جو لوگ ہمارے نئے ہیں. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ کی آیات ہیں 75 سے 78 تک. جو کھڑا ہوتا ہے نا ایسے اینگل سے وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. یہ آیا مبارکہ اس کا پس منظر جب وہ شان نزول پڑھتے ہیں نا تو اس میں تو ایک بندے کا ذکر پہلے وہ بیان کر دے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اور پھر اس آیات کو تفسیر ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی، انہوں نے اس کو پاکستان کی جو موجودہ سینیریو ہے جو پہلے ڈسکس ہو رہا تھا، بائی چانس میں نے یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہاں پہ یہی چیز ڈسکس ہونی ہے، تو انہوں نے اس سارے پس منظر کو ان آیات کے حوالے سے دیکھا. پہلے ترجمہ ان کا یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں بیسیکلی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو منافق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا. ایک بندہ ایک دن صحابی ہیں سلبہ بن حاتب، وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے نا دعا کریں میں مالدار ہو جاؤں. آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، پھر وہ آ گیا سامنے، یا رسول اللہ دعا کریں میں مالدار ہو جاؤں. آپ پھر خاموش رہے. آپ نے فرمایا اے سلبہ جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اس نے اصرار کیا، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ سلبہ کو مالدار کر دے، دعا فرما دی. زبان مصطفیٰ سے دعا ہونی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کچھ بکریاں ملی، اور وہ بکریاں ایک ایک بکری 4-4 بچے دے، اور سال میں 2-2 دفعہ وہ بچے دے. دیکھتے ہی دیکھتے سلبہ کا جو خطاب تھا نا، لقب تھا، اس کو کہتے تھے حمولۃ المسجد، مسجد کی کبوتری. وہ رہتا ہی مسجد میں تھا کچھ نہیں، پہلے غریب تھا تو مسجد میں نمازیں پڑھنا اور ادھر ہی ذکر اذکار کرنا. اب جب مال آیا تو سلبہ جو ہے نا وہ اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئیں. مال اتنا بڑھ گیا، 1-2 سال میں اتنا بکریاں ہو گئیں کہ مدینے میں اس کی بکریاں نہیں سماتی تھیں. اس نے باہر جنگل میں جا کے حویلی بنا لی، ڈیرا بنا لیا، وہاں پہ وہ بکریاں مطلب اپنی سنبھالتا. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ سلبہ کے پاس اسے کہو کہ زکوٰۃ دے. جب گئے انہوں نے کہا جی زکوٰۃ، انہوں نے کہا جی جانوروں میں وہ 20 جانور کے پاس 1 جانور ہوتا ہے، اس طرح کوئی زکوٰۃ کا جو فارمولہ ہے. تو اس کی کئی 100 بکریاں زکوٰۃ کی بنتی تھی کیونکہ مال ہی اس کے پاس اتنا تھا. تو اس نے آگے سے کہا کہ جی میں ابھی سوچ لوں، یہ تو جزیہ ہے، یہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہے، یہ تو اتنا مال میں کیسے دے دوں.
आप अगले कबीले से ज़कात लें, वापसी पे मैं सोच के बताता हूँ। सहाबा किराम अगले कबीले से गए, वापस आए, उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज़कात तो नहीं दे सकता, कुछ 2-4 बकरियाँ अगर आप कहते तो मैं दे देता। सहाबा वापस आ गए, ये आयात नाज़िल हुई तो आपने फरमाया सलबा हलाक हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उसको जाके बताया, वापस आया, मदीने में पहुंचा फ़ौरन, और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ज़कात देता हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तेरे माल की ज़रूरत है। ये एक इम्तिहान था उस पर, और वो रोता और चीखता रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उससे ज़कात वसूल ना की। फिर हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, वो ज़कात देने के लिए मिन्नतें करता रहा, किसी ने उससे ज़कात ना ली। हज़रत उस्मान गनी के दौर में वो फौत हुआ, लेकिन किसी खलीफे ने, किसी खुलफा में से किसी ने भी उससे ज़कात वसूल की। तो ये तो पस मंज़र था इन आयात का। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अता किया अपने फजल में से, लनसद्दक़न्ना, हम ज़रूर बर ज़रूर सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, और हम ज़रूर बर ज़रूर नेकोकारों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जब अल्लाह उन्हें अपने फजल से अता कर देता है, बाखिलू बिही, फिर वो बुखल करते हैं। अब उसको अल्लाह ने अता कर दिया था, उन्होंने बुखल किया। फिर आगे फरमाया अकाब, हम उसकी सज़ा आगे बयान की। अकूबत खाना नहीं कहते, अकाब मैंने होता है, वैसे तो पैर की एड़ी को कहते हैं, लेकिन जो पीछे आने वाली सज़ा, उनकी सज़ा क्या है? नफाकन फी कुलूबिहिम अला यौम यलकौनहु, यानी अल्लाह ने उनके दिलों में मुनाफ़क़त डाल दी है उस दिन तक, यौम यलकौ, जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उस दिन तक उनके दिलों में अब वो मुनाफ़क़त का जो बीज है ना, वो गहरा हो गया है, वो ख़त्म होने वाला नहीं। यौम यलकौ, जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उस दिन तक अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक डाल दिया है। तो ये तो इस आयात का वो पस मंज़र था। अब आ जाते हैं कि जी तफसीर बयानुल कुरान में क्या बयान किया है डॉक्टर इसरार अहमद ने। वो कहते हैं कि ये आयात, क्योंकि कुरान जो है ना, ये तो तारीख़ की किताब नहीं है। हम कहेंगे जी सलमा बिन हातब के बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी, लिहाजा वो चला गया, जो उसका मामला, बस इस आयात का भी मामला ख़त्म नहीं। ये आयात आफाकी हैं, हर दौर में हर इंसान के लिए। इन आयात का हम पे कैसे, हमारे दौर में हम पे कैसे ये इम्प्लीमेंट होती हैं? हमने एक अल्लाह से वादा किया था। अल्लाह से क्या वादा किया था हमने? सन 47 में कि पाकिस्तान बनेगा, हम यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब बच्चे की ज़बान पे, बूढ़े की ज़बान पे, जवान की ज़बान पे, सब पे ये था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो हम इसको एक दरसगाह, एक मतलब लेबॉर्ट्री बनाएंगे, यहाँ पे इस्लाम को नाफिज करके दुनिया को दिखाएंगे कि ये इस्लाम है और ये इस्लाम का निज़ाम है। बदकिस्मती से हमारे लोगों ने इस इस्लाम को दीन से मज़हब बना लिया। मज़हब क्या होती है? इबादत का मजमूआ होता है मज़हब। तो हमने मस्जिद के अंदर मज़हब बना लिया, जो निज़ाम है जिससे ये दुनिया का निज़ाम चलता है, उसको हमने दे दिया कि जी ये सियासतदानों का काम है, ये दीन का नहीं है। अगर कोई मौलवी बात करता है तो वो कहते हैं ये सियासी हो गया, हालांकि सियासत दीन का हिस्सा है। मज़हब में इबादत होती है, सियासत में पूरा दीन होता है, निज़ाम होता है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। अब हमने अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह हमें अगर पाकिस्तान मिला तो हम यहाँ पे दीन इस्लाम नाफिज करके दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान बन गया और आइन बन गया हमारा पहला आइन, और प्रेम्बर जो आइन का बना उसमें हमने लिख दिया कि जी इस मुल्क में, इस आइन, पाकिस्तान के आइन में कोई भी कानून खिलाफ शरा नहीं बनेगा। कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं हम पास करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जी हाकमियत अल्लाह ताला की है, ये हमारे आइन में लिखे हुए हैं, बड़े सुनहरी हरूफ में लिखे हुए हैं। ये हमारी मुनाफ़क़त की सबसे बड़ी निशानी है। हमने मुनाफ़क़त की, हमने धोखा देने की किसको कोशिश किया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के सामने हमने वादा किया कि यहाँ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हम कोई आइन नहीं बनाएंगे। क्या मुझे बताए कोई खड़ा होके
पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। हमने मुनाफिकत की और अल्लाह फरमाता है कि फिर वो जो मुनाफिकत का जो है ना सज़ा वो क्या देता है, वो दिलों में वो उस मुनाफिकत के बीज को बो देता है। फिर वो जब तक वो अल्लाह के पास नहीं ना जाता तब तक उसके दिल में वही मुनाफिकत रहेगी। जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा बंदा या कोई कौम खड़ी होगी तो वो उस मुनाफिकत के साथ खड़ी होगी। अल्लाह उसे पूछेगा कि मेरे साथ तुमने क्या वादा किया था। जो अल्लाह के साथ हमने वादा किया था कि हम इस पाकिस्तान को अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के रसूल के कानून और कायदे के मुताबिक यहाँ पे दीन को नाफिज करेंगे, हमने नहीं किया। हमने सबसे बड़ा जो कुरान में किसी गुनाह के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरा और मेरे रसूल का अल्लाह ने जंग है उसके बारे में जो काम ये करेगा, सिवाय सूद के। सूद को हमने मजबूरी बना दिया है कि जी इसके बगैर निज़ाम ही नहीं चल सकता। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात गलत है और हम ठीक हैं और हमारा निज़ाम सूद के बगैर चल ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो हमें डूब मरना चाहिए, हमें मुसलमान कहलाने के हमें हकदार ही नहीं है कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है उसमें वज़न नहीं है। हमारा निज़ाम ही देखो जी, दुनिया में सारे सूद चलता है, हमारा निज़ाम ही नहीं। हमने शरीयत कोड बना दी फर्जी तौर पे और वो एक कौंसल है, नज़रियाती कौंसल बना दी और उसके पर काट दिए कि जी ये मौलवी बिठा दे, जिन मौलवियों को चुप कराना हो, जिन मौलवियों को रिश्वत देनी हो उन मौलवियों को बिठा देते हैं। वो मौलवी भी बड़े बड़े पेटों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बैठ के वहाँ पे याशी करते हैं, 80-80 लाख की लस्सी भी जाते हैं और रिज़ल्ट ज़ीरो। वो साल के बाद एक सिफारिश लिख के भेज देते हैं और वो जाके फाइल में लग जाती है। वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन, उस पे अमल दरामद कराना पार्लियामेंट का ज़रूरी नहीं है। ये हमने कानून में लिखा है कि जी नज़रियाती कौंसल जो मर्ज़ी कहे लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे। नज़रियाती कौंसल ने कहा कि जी सूद हराम है, हमने जाके स्टे ले लिया और 70 साल से पाकिस्तान स्टे पे चल रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ अल्लाह ने जंग किया है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं? कौन कहता है कि हम इस्लामी मुल्क हैं? हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ अल्लाह ने जंग किया है और फिर ये हुकूमत लेवल है। हम में जिसके पास 1 लाख रुपया होता है ना, वो जी जमा करा दे बैंक में, 20% मिलता है। वो तो जो हुकूमत लेवल के काम है वो तो मिनहसल कौम है, वो तो जो कर रहे हैं बड़े वो जवाब देंगे। क्या हम में से कितने लोग हैं जो सूद लेते हैं और सूद देते हैं? छोटी छोटी पेंशन आई, जमा करा दें जी सेविंग में, सेविंग अकाउंट करा दें जी, पैसा मिलेगा, घर बैठ के खाएंगे। अगर वही पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे पास जब मैं रिटायर्ड हुआ 2018 में, मेरे पास 42 लाख रुपया मुझे मिला। अस्करी में मेरा अकाउंट था। अस्करी का मैनेजर मुझे कहते थे मेरे पास स्कीम्स हैं, आप कराएं जमा और आपको बड़े पैसे मिलेंगे। मैंने कहा यार मैं स्कीमों में नहीं जमा कराने, अगर अल्लाह ने डबल करने हुए तो वैसे ही हो जाएंगे बगैर स्कीमों के। उस वक्त बैरिया जो थी ना वो डॉम थी। मैंने 5 मरले का प्लाट ले लिया 25 लाख का और 1.5 साल के बाद वही प्लाट मेरा 49 लाख का सेल हुआ। अगर मैं वो उधर करता, हो सकता मुझे उधर इतने मिलते या इससे भी ज़्यादा मिल जाते या इससे कम मिलते, वो हराम थे। अगर मैंने कोशिश की तो अल्लाह ने जायज़ तरीके से मुझे दे दी। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। अल्लाह जो बंदे की नीयत होती है उसके मुताबिक उसके साथ फैसला करता है। तो आज हमारे जो हालात हैं, जो अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम, अल्लाह तुम्हारी सिर कहते हैं राज को, नजवा कहते हैं सरगोशी को। अल्लाह तुम्हारे राजों को, जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं वो भी जानता है, और जो तुम बंद कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हो और सरगोशियाँ कर रहे हो अल्लाह उसको भी जानता है। ये कहते हैं कि जी हम बंद कमरे में बैठे हैं, फलां के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फलां के खिलाफ फैसला कर लो, फलां को इलेक्शन जिताना है, फलां को नहीं जिताना। ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, वो एक ज़ात है जिसको पता है कौन क्या कर रहा है। और ये तारीख गवाह है इस पाकिस्तान के साथ, जिसने नाइंसाफ़ी की है, जिसने ज़्यादती की है, वो कुत्ते की मौत मरा है।
اور جو کر رہے ہیں, جو آئندہ کریں گے, ان کے ساتھ بھی یہی اشر ہے. جو بندہ اس ملک, یہ ایک ہمارے آباء و اجداد نے یہ مسجد بنائی تھی, ہم نے مسجد میں سوروں کو باندھ دیا ہے, خنزیر باندھے ہوئے ہیں. مسجد تو تھی اللہ کی عبادت کے لیے, تو ہم نے اس مسجد میں گندگی ڈالی ہے, اور جو ڈال رہے ہیں اس کو ان کا اجر مل رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, ناانصافی کی, وہ اس دنیا میں سزا لے کر گئے ہیں. آگے تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور جو اب کر رہے ہیں وہ بھی سزا ملے گی. لیکن ہمارا کیا کام ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اگر کسی کو برا بلا کہوں, کسی پارٹی کو کہوں, کسی جنرل کو کہوں, میں اپنی زبان تک میری بات کہاں جائے گی؟ میں کر کیا سکتا ہوں؟ میرے پاس ایک ووٹ کا اختیار ہے, میرے پاس جو بھی جیسا بھی نظام ہے, میں ایک چینج نہیں, یا ہم سارے بھی جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم اس نظام کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک ووٹ کا اختیار ہے, اور اس ووٹ کو, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا, اس بندے کو دیں. اگر 10 بندے کھڑے ہیں جو سب سے اچھا ہے نا, ان 10 میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. ان 10 میں سے جو اچھا ہے نا, چاہے وہ آزاد ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کا ہے, جو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ جی میں اس کو ووٹ دوں گا تو یہ نظام کو ٹھیک کرے گا. ہم ووٹ دیتے ہیں گلیوں کو, گٹروں کو, ہم گٹر کو ووٹ دیتے ہیں, جی میرا گٹر اس نے ٹھیک کیا ہے, میں اس کو ووٹ دوں گا. تو ووٹ ہم نے نظام کو نہیں دیا, اس بندے کو نہیں دیا, ہم نے گٹر کو ووٹ دیا. نالیوں اور گٹروں کو چھوڑ کر اس دفعہ کم از کم آپ اس انسان کو ووٹ دیں کہ جو آپ کی آواز بن سکتا ہے. یہ 5 سال کے بعد آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے, اگر آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں, وہ سارے پلان فیل ہو سکتے ہیں. جو بھی اچھا انسان ہے آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کو ووٹ دیں. یہ پاکستان, اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے. ہم میں سے کون ہے جو باہر چلا جائے گا؟ یہ بڑے لوگ تو چلے جائیں گے, ہم نے یہاں رہنا ہے, ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اس پاکستان نے بھی رہنا ہے. ایسی نئی بات, ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یار برے حالات ہو گئے. یار یہ افغانستان آپ کے پاس مثال ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے دیکھا افغانستان میں جنگ لگی ہوئی, 1.5 سال کے 2 سال ابھی ہوئے ہیں ان کو آزاد ہوئے. وہ گورے بھی پریشان ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے 1 روپے کے کبھی افغانستان کی اتنی نا وہ پانڈ نوٹوں کی آ جاتی تھی, آج افغانستان کا 1 روپیہ پتہ نہیں ہمارے کوئی 60-70 روپے بنتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کیا کر لیا؟ کیا کوئی علادین کا چراغ ہے؟ صرف ایک کام کیا انہوں نے, ایمانداری, انصاف. اور انشاءاللہ جب بھی کوئی حکمران آئے گا یہاں پہ, عدل و انصاف, صرف عدل و انصاف قائم کر دے, چھوٹے بڑے کی تمیز, امیر غریب کی تمیز ختم کر دے, اور پاکستان ترقی کر دے گا. پاکستان کے پاس دنیا کا امیر ترین ملک ہے, جس کے پاس ہر طرح کے موسم, ہر طرح کا زمین, پہاڑ, صحرا, ریگستان, دریا, ہر طرح کے انسان, دنیا کے قابل ترین لوگ پاکستان میں ہیں. ہمارا سارا برین یورپ میں جا رہا ہے, ہمارا سارا برین آسٹریلیا میں جا رہا ہے, اور ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ لوگ وہاں جا کے ان ملکوں کی ترقی کر رہے ہیں, ان ملکوں کی ترقی میں ان کا کام ہے. انشاءاللہ جب پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی, پاکستان دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کر دے گا. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ایک موقع ہے ہم سب کے پاس. کسی نیک اچھے انسان کو آپ ووٹ دیں, اور باقی بات اللہ پہ چھوڑ دیں, اور دعا کریں. اگر آپ نے گٹروں کو اور نالیوں کو ووٹ دیے تو پھر اللہ یافز ہے, پھر ہمارا یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ سر. ہر میٹنگ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کی روح کو ہم کچھ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ پاک مطلب کہ برکت کر دے. تو سلسلہ تو بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا 3-4 منٹ جو ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا سر عبد شکور صاحب کی, تو وہ اپنے خیالات کا. سر شکور صاحب. یہ عربہ فاؤنڈیشن کافی دیر سے بنی ہوئی ہے. کاشف تھا, اقبال تھا پہلے میرا خیال ہے, ظہیر صاحب تھے,
मंजूर साहब नहीं आए, लेकिन मेरा इनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा क्योंकि मैं 2007 में रिटायर्ड हुआ था और फिर 2008 में मैं दिसंबर 2008 में सऊदी चला गया था और अभी कभी वेकेशन पे आया हूँ, बच्चे की शादी थी, फिर ये रिडारियंस की गेट टुगेदर हुई। आई एम द फाउंडर ऑफ द रिडारियन। यहाँ लाहौर में वो रावियंस और इस तरह का लफ्ज़ चलता है जिसोनियन, इससे मैंने रिडार से रिडारियन बनाया था और मेरी टर्म काफ़ी मशहूर है क्योंकि एग्जैक्ट वाले तो उससे चिढ़ गए क्योंकि मेरी पोस्ट आजकल वो नहीं कर रहे। और अरवा जो है बहुत अच्छी फाउंडेशन है, रिहेबिलिटेशन में लोगों की मदद कर रही है, जो हमारे चले जाते हैं दोस्त उनकी फैमिली की लुक आफ्टर कर रही है, बच्चों की लुक आफ्टर कर रही है और इसी तरह कोई किसी को जॉब या दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो इस तरह करें। तो सबसे ये मैं इसमें जिस तरह ये मदद कर रहे हैं विडो की, तो सारे थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट भी करें ताकि इनके लिए आसानी हो, बच्चों की तालीम के लिए विडो को दें, उनकी तालीम जारी रखें। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सजेशन नहीं है लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो एक चीज़ को हम ले लें कि ये हमने करना है। तो इसलिए कि देखें ना, फौज इसी तरह चलती है कि उसमें टाइम की पाबंदी है और हुक्म की पाबंदी है, तो वो ठीक चलती है। इसलिए हम भी कोई ऐसा काम करें यहाँ कि जो एक नुक्ते पे हम आएँ और वो बाकी चलते रहेंगे, पानी भी आएगा, प्लेट भी आएगी, टिश्यू पेपर भी आएगा, गिलास भी आएगा, लेकिन क्या मोबाइल भी ठीक है? सबका मोबाइल ठीक होना चाहिए, सबके इन कंटेक्ट होना चाहिए। एक भाई इसमें ये है कि वहाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक सब बंदूक भाई इन कंटेक्ट है सब, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ हमारा एक स्पेशल सिस्टम होना चाहिए, तो इस पर गौर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अच्छी बात बताई, उसका मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बताना चाहता हूँ कि उसमें जो मेरी कोशिश होती है, जब भी हम बताते हैं और हमारे प्रेसिडेंट की भी एडवाइस है कि आपने लोगों से पूछना है, जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी सोर्स से पूछें। फॉर एग्जाम्पल एक किसी की डेथ हुई है, उसको इमरान साहब जानते हैं, कंबोज साहब जानते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि यार उनकी फैमिली से पूछो कि उसकी वाइफ है, उसके बच्चे कितने हैं, इसके नाम पे पेंशन शिफ्ट हो सकती है। तो उसको हम सारी चीज़ें बताते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक हाथ की लिखी हुई एप्लीकेशन, डेथ सर्टिफिकेट, FRC, ये चीज़ें मतलब है कि वो घर वालों ने ही प्रोवाइड करनी होती हैं। ये हम रिक्वेस्ट करके उनके घर तक पैगाम भिजवाते हैं और जिनको हमारी ज़रूरत होती है मतलब कि हम अटैचमेंट पूरी करके वो सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट खुद भेजें या बेस पे एक माउंट सेल बना हुआ है वो उसके थ्रू भेजें। उसके बाद डॉक्यूमेंट पेशावर से आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। अपना अकाउंट का नंबर लिखना, फिल करना, किसके नाम पे लगनी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई होती हैं। फिल करके फिर सोल्जर बोर्ड के थ्रू हम उनको भेज देते हैं पेशावर में और विद इन 2 मंथ माशाल्लाह या 3 मंथ वो पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ये चीज़ें हम मतलब कर रहे हैं और आपको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको, अगर किसी का भी कोई ऐसा मसला हो तो वो ज़रूर बताया करें ताकि हम मतलब उसको खुद हैंडल करें। नंबर 2, जब भी किसी की बेटी की शादी होती है तो स्पेशल मतलब कि हम उसको बताते हैं कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट मतलब प्रोवाइड कर देने हमें, हम भेज देंगे वेलफेयर में। जैसे मतलब कि एक ताज़ा वाक़या आपको बताते हैं कि हमारे दोस्त आफत साहब हैं, इनकी बेटी की शादी हुई है, इनको मैंने बताया हुआ कि ये वाले डॉक्यूमेंट हमें देने और अमीर हमारी शायद ये लेके आए होंगे। हाँ जी, लेके आए हो, मैंने बताया था सब कुछ बताया। हाँ ठीक है ना, ये जो आपने बात की है ना, ये हम ऑलरेडी मतलब है कि पुख्तगी से कर रहे हैं। जब किसी किसी को जब किसी की डेथ होती है तो लोगों के घरों में पता ही नहीं होता कि किस डॉक्यूमेंट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है, किस एड्रेस पे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह पीछा करके बताते हैं। मतलब है कि हम जिधर भी हों ये चीज़ें मतलब है कि मैं तो लाजमी, क्योंकि मुझे एडवाइस भी है प्रेसिडेंट की कि आपने खुद ही पीछा करना है और मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो भी चीज़ अच्छी होगी हम इंशाअल्लाह ताला मतलब उस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर असगर साहब की कि वो अपना ख्याल का इजहार करें। सर असगर साहब। ये आया है, मैं ये 2 बंदे मुझे जानते हैं
वाहिद साहब जी, के जी, बाद। जी, जी, जी। ठीक है। बाकी मैं आज ये बहुत अच्छी चीज़ है आप बेनिफिट की कर रहे हैं। ये किसी भी जगह ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एयरफोर्स की मदद करें, बाकी हर जगह पे मसाइल हैं, वहाँ भी आप ये जगह बंदा बैठा उसकी उनकी मदद करें। और एयरफोर्स का तो ठीक है, आप करते हैं किसी भी अगर आप मैं वीज़ा से रिटायर हूँ, अलहमदिल्ला कोई मसला नहीं है, कोई किसी का आपने प्रॉब्लम हो तो बंदे को उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। अकेले सिर्फ इसलिए अपने एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बाहर आ गए ना, बाहर के बहुत मसाले लोगों के पास। हाँ, एयरफोर्स थोड़े बहुत फिर भी आप हो जाते हैं, लेकिन बाहर से बड़े मुश्किल होते हैं। मुझे पता है आप स्वीगर में जाएँ तो आपको गरीब कर देंगे, वैसे कर देंगे आपको। बाकी जो चीज़ें और अपने हैं करने वाली, मैं अपने तौर पर आती है प्रशासन ने कहा कि मैं भी रेगुलर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक और वो उसकी भी टाइमिंग यही है 10 से 12 हो जाओ मीटिंग होती है, उसका मैं सीधा वहाँ मीटिंग होती है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो भी आदमी नहीं खरीदवारी होती है। बाकी दूसरी चीज़ है कि वो जो अपने ये करते हैं अपने वेलफेयर, वो चलो हर बंदा ही करता, मैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी हम इधर भी इंशाल्लाह शामिल होंगे, क्योंकि ये अभी जो सैलाब से था ना, मैं ज़ाती तौर पे 3 ट्रक लेकर गया था बलूचिस्तान और सिंध में, जिनमें किसी को दिए नहीं थे वो तकसीम किए। हालांकि मेरी बात हुई थी वहाँ कोयटा में भी, वो आर्मी से भी अपने FC भी किसी से मिला कहता ये दे दें, मैं कौन दे दें, मैं बोलता हूँ मिलता है सखर पनवार के साथ हमने खुद ही दिया था, हमने 3 दफ़ा देता हूँ। बाकी ये होते हैं ये अपने वेलफेयर वो तो ठीक है, यहाँ भी करनी, बाकी यहाँ बंदा अपने कर ही रहा है, उसमें तो हम कर ही रहे हैं, फोर्स कोई व्यवहार बात करती हैं उनसे नहीं, बाकी हम आपके साथ काम करेंगे, हर तरह कोई मसला नहीं, बाकी इंशाल्लाह कभी कभी हाजिर जरूर लगाया करूँगा। जी जी, थैंक यू। साहब ने कहा कि लाजमी नहीं है कि एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग ही हों, ये बात कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बंदा बार बार कहता अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी पिछले महीने में ही एक कोई धोबी था, उसने मतलब कॉल की साहब को कि मतलब है कि मेरी सिस्टर की शादी है तो हमें फेवर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अरबा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से साहब ने भेजा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब है कि इस फाउंडेशन के साथ कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े हुए हैं जो अल्लाह की तरफ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे ये अभी फोटोग्राफर हैं, मतलब है कि इनका जब भी कभी कोई मिसाल कोई भी मसला बने तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पेश होते हैं, सब बताते हैं उनके साथ जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं, कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का। तो ये भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे हम इस का हिस्सा है। तो बाकी एक चीज़ जो फर्स्ट टाइम लोग आए हैं मतलब एक उनके नॉलेज के लिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता है कि अरबा फाउंडेशन में अगर कोई भी गोल्डन मेंबर या बाकी मतलब कोई चीज़ देते हैं, ये फाइनेंस कमेटी बैठी है इधर, एक अहमद खान साहब हैं, सरदा साहब हैं, गिल साहब हैं, वो जो भी इधर कोई चाय पानी रिफ्रेशमेंट होती है उसमें उससे हम कोई चीज़ नहीं देते, वो दैट इज सेपरेट, टोटली सेपरेट होता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब है कि जो भी कोई अरबा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी भी हवाले से कोई चीज़ इनके हवाले करेगा पैसों की शक्ल में या जो भी हेल्प होगी, वो टोटली तौर पे मतलब इन सब चीज़ों से बनी है, उसमें वो चाय पानी मतलब ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें सेपरेट। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा सर फारूक साहब की कि वो अपने ख्याल का करें। सर फारूक साहब। एक तो मैं रेडारियन के लिए मैं हाजिर हुआ था और मुझे मुतारफ़ करवाया था शकूर साहब ने, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने बताया कि मैं चूँकि रेडारियन तो नहीं हूँ, ट्रेड मेरा नहीं है, तो फिर भी मैं वहाँ हाजिर हुआ, आपके साथ ये पहली मीटिंग है। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर एम्फेसाइज करूँगा जो शायद सफ्तर साहब नाम था जी आपका, सफ्तर साहब ने बात की है, आप अपने कॉन्टैक्ट जो हैं उसको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इतना मजबूत कर लें कि जैसे डेली बेसिस पे लोग मैसेज करते हैं। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 5555 आज हो गए हैं, 1-2 मैंने यहाँ से ऐड किए हैं, तो उनमें मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मैं कोशिश करता हूँ डेली उनके साथ या दूसरे दिन मेरा रब्ता हो जाता है मैसेज के लिए। तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपके किसी बंदे को ये ना पता करना पड़े, जैसे आपने फरमाया ना कि जी हम किसी से पता कर लेते हैं कि जी उसके साथ क्या मसला हो गया और वो उसके घर नहीं, सर आपके पास अपना कंट्रोल सिस्टम, अपने आपके सारी लगामें आपके हाथ में हैं। नादिर शाह की तरह, नादिर शाह अफगानिस्तान से चला दिल्ली तक पहुँच गया और उसे ये हाथी पेश किया गया, बैठे जी बैठ गया, लेकिन इसकी लगामें कहते जी इसकी लगामें नहीं होती, फील बान होता है जो उसको इसके ऊपर बैठ के चलाता है। तो कहता है ये
हाथी चलाने का मज़ा तो उसने ले लिया, मैं तो ये नीचे खड़ा होकर भी देख सकता था। तो जो लोग खच्चर की पीठ पर या घोड़े की पीठ पर बैठ के जंगे लड़ते आ रहे थे, उनके लिए हाथी जो है, हाथी पे बिठा देना मतलब है बेकार कर देना। तो आप इस तरह का सिस्टम बना रहे, सिर्फ एक पॉइंट है ये कि आप मुख्तलिफ ग्रुप बनाएं। जैसे मैं देखता हूँ मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बड़ा ही पेशा, ये भी बड़ा आम हो गया है कि उन्होंने अपने मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मतलब एक एक ऐसे स्पीकर के 10-10, 12, जिनमें से 3 में मैं भी एक जगह पर शामिल हूँ, एक ही बंदे के 3 में मेरा नंबर शामिल है। तो आप काइंडली इस तरह करें कि, और दूसरा मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब नंबर आप शेयर करते हैं तो ऐसा नंबर शेयर करें। आपके अक्सर जो फ़ोन मुझे गफूर साहब ने शामिल किया था ग्रुप में, तो उनमें लिखा हुआ है गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर, अच्छी बात है ये लिखना है, लेकिन आपके नाम की जगह ये लिखा हो और वो सिस्टम उसको डिटेक्ट करे तो उसको बंदा क्या समझे कि ये बंदा कौन है, क्योंकि ग्रुप इतना आपके पास कॉन्टैक्ट हैं। जब अपना फ़ोन आप खोलते हैं तो चंदा रानी और इस किस्म के नाम और कोड में कुछ चीज़ लिखी हुई, आप अपना नाम अगर तस्वीर नहीं लगाना चाहते तो कम से कम अपना नाम अपने कॉन्टैक्ट के साथ जरूर सेव करें, ताकि जब किसी के पास वो मेरी बात वो लोग समझ रहे होंगे जिनके पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो नेम डिटेक्ट हो जाते हैं। तो काइंडली एक प्लेटफॉर्म पे सारों के कॉन्टैक्ट इस तरह ले आएँ कि आपको किसी बंदे को तलाश करने की मुश्किल पेश ना हो। जैसे मेरे पास जो लास्ट टाइम नंबर आया तो मैंने उनके सारों के साथ रेडारियन लिख दिया, और जो अरवा के आए उनके साथ अरवा के साथ लिख दिया कि ये अरवा के लोग हैं। तो मुझे अरवा के लोगों को तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अरवा लिखूंगा पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस तरह का कोई सिस्टम बनाए कि ताकि आपके पास, और अगर ये सिस्टम फैलता चला जाए तो आप इसको इसके सेगमेंट बना सकते हैं, जोन वाइज पूरे पाकिस्तान में, मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, इस तरह के कुछ सेगमेंट बना लें ताकि आपको बंदा तलाश करना मुश्किल ना हो गया। एक का नाम लिखें अपने फ़ोन में, पता चल जाए ये इतने लोग ये सऊदीया से हैं, ये बहरीन से हैं, ये विद इन द कंट्री हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। तो जब तक आपके रास्ते मजबूत नहीं होंगे आप किसी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ पे नहीं पहुंच सकेंगे। और दूसरी बात, सफदर साहब की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। हर एक मीटिंग का मंथली एक एजेंडा रख लें, उस एजेंडे को जरूर डिस्कस किया करें ताकि पता चले कि हम पहले कहाँ पे थे। और ये शायद 44th मीटिंग है, if I am not wrong, 43rd। तो हमारी 43rd मीटिंग मतलब 42 महीने गुजर गए, तो तकरीबन ये 4था साल जा रहा है, जी एंड होने वाला है। तो आफ्टर 4 ईयर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह आपको पता चलता जाएगा। वरना 4 साल पहले भी गुजरे, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देंगे, आपने बहुत आगे सफ़र कर लिया हो, लेकिन चूँकि हम नए हैं तो इसलिए वो नए वाली बात हम कर रहे हैं। एजेंडा सामने होगा, उसके ऊपर बात करेंगे, पिछले जो प्रोग्रेस है वो सामने आएगी। और जैसे मैंने आप पॉइंट किया, आज रेस किया सफदर साहब की सपोर्ट में कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम कॉन्टैक्ट को मजबूत करेंगे, इंटैक्ट कर लें सारे लोगों को एक जगह। तो अगर ये एक्सेप्टेबल है पॉइंट, वेल एंड गुड, इसको आगे लेके चलेंगे, नहीं तो इसको ड्रॉप करेंगे, एक नया पॉइंट हम ले लेंगे और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अगर उसकी किसी पॉइंट की प्रोग्रेस निकलती है तो फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम वहाँ पे स्टेगनेट हो गए हैं तो फिर हमने लूज़ किया है। और चूँकि मिलते 4 हफ्ते बाद हैं तो 4 हफ्ते आपके निकल जाएंगे। और इस काम के लिए अगर कोई ऐसी मुश्किल है तो IT में थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पूरे पंजाब का डाटा मैनेज करता रहा हूँ। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट आजकल एक कोर्स चल रहा है, लोग जानते होंगे जो IT से रिलेटेड है, कि बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका असिस्टेंट पाकिस्तान में है, उसकी जितनी मीटिंग है, उसके जितने काम हैं, उसके जितने पासपोर्ट के इशू हैं, उसके जितनी ट्रैवलिंग है, होटल बुकिंग है, उसकी जितनी जो कोऑर्डिनेशन करनी है वो बंदा यहाँ वर्चुअली पाकिस्तान से बैठ के कर रहा है। और सिर्फ उसको पता है कि मैंने क्या क्या उसको देना है, और साथ को वहाँ हर एक चीज़ जो है अपडेटेड पहुँच रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिलें तो ये काम होगा, ये बगैर मिले हुए भी काम हो सकता है। वर्चुअली आप डाटा के थ्रू, व्हाट्सएप ने बड़ा आसान कर दिया काम, जूम ने बड़ा आसान कर दिया, टीम एक सॉफ्टवेयर है उसने बड़ा आसान कर दिया। इस तरह के आप गैजेट को या IT सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए, जरूरी नहीं कि आप कहीं इकट्ठे होंगे तो काम होगा, डाटा ट्रैवल कर सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, ईमेल की जा सकती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जी, 1 पॉइंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लोग हमारे दोस्त मेरी एज के जो हैं, नौजवान भी होंगे इसमें, कि हम फ़ोन तो रख रहे हैं लेकिन हम इस फ़ोन को जो हमने एटलीस्ट
50,000 रुपये का फ़ोन खरीदा हुआ है, इसमें से हम 3 से 5,000 रुपया इस्तेमाल करते हैं, बाकी 47 से 45,000 रुपया हमारा ज़ाया जा रहा होता है। तो इस फ़ोन को अगर आपने रखा हुआ है तो इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखें कि क्या आपका फ़ोन हो चुका है, आप जैसे डाटा शेयर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, कैसे रखना चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी उसी ग्रुप में शेयर की जा सकती है ताकि लोग अवेयरनेस उनकी इस बारे में रहे। तो मैं हेल्प करने में तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। इतना सा बंदा हूँ, लेकिन मेरा मेन काम जो था ना वो तालीम और सेहत के बारे में था। तो एयरफोर्स से रिटायरमेंट से पहले भी एयरफोर्स में एक नाम बना कि आज एयर मार्शल अशरफ खान से लेके आज के एयर चीफ तक ऐसे बैठ के मेरी उनके साथ तस्वीरें बनी हुई हैं। ये सबसे बड़ी ऑनर है मेरे लिए। 65-71 के शोधा पे जो मेरी बुक आई फ़ज़ाई सरफरोश, उसका पहला एडिशन मेहदी कुरैशी ने प्रिंट करवाया था, दूसरा मुस्तफ़ा अली मीर शहीद ने प्रिंट करवाया था, तीसरा अभी सेंटिनल्स इन द स्काई के नाम से ताहिर बिग भट्ट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और एयर क्वार्टर में तकरीब हुई और मैं भी यहाँ से गया था। 3 दिन अफसर मैस में रहा। पहली दफ़ा अफसर मैस देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन उन सबको लीव इट कि लेकिन हमें अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना होता है। तो इस सिलसिले में मैंने 98 में एयरफोर्स छोड़ी तो बेस कमांडर ने मुझे फ़ज़ाइया कॉलेज में सिलेक्ट कर दिया एज ए PRO, क्योंकि टीचर की वैकेंसी नहीं थी। तो उन्होंने रिकमेंडेड दिया कि रिकमेंडेड एज ए टीचर एंड ड्यूटी एज ए PRO। तो बहरहाल कॉलेज के लिए मैंने कुछ 3-4 मैगज़ीन कॉलेज के निकाले, कुछ अपना मैगज़ीन मंथली मैगज़ीन समा आता है 2003 से, उसका मैं चीफ एडिटर हूँ। तो वो अभी तक निकल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। उस पर भी तालीम और सेहत पे ही मेरी तवज्जो है। और इसके अलावा जब मैं 9 साल शहीदों के घरों में गया हूँ तो मैंने देखा कि जो ऑफिसर्स भी हैं उनकी फैमिलीज भी कस्ब उसकी ज़िंदगी गुजार रही थी। 65 का एक स्क्वाड्रन लीडर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट या कैप्टन शहीद है तो उसकी 15,000 2,000 इतनी थोड़ी पेंशनें थी। तो क्या उसमें वो गुजारा करेंगे? नॉन कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कमीशन अफसरों के घरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो सारा कुछ देख के तो मैंने एयर मार्शल दिलावर साहब के साथ बैठ के, नाम हमने ग्रुप कैप्टन हुसैनी साहब थे, चिकलाला में बैठ के सर्फशान पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का नाम मैंने सब ने तजवीज़ किया और उसके मैं 10 प्रोग्राम अलमरा हाल में करवा चुका हूँ। लास्ट मेरा MM आलम अवार्ड था जिसमें मैंने 60 अवार्ड्स जो सारा जरूरत थे उनको दिए, क्योंकि MM आलम का एक नाम था। ये काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। इसमें पहले मेरे पैटर्न चीफ जनरल MH अंसारी थे और दूसरे थे डॉक्टर नसीम हसन शाह और आजकल लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सोहेल अब्बास जाफरी साहब हैं। और मैं एयर मार्शल फारूक उमर साहब के साथ, ABM फारूक उमर साहब के साथ होता हूँ। उनका समझो कि PS भी हूँ, उनके सारे काम करता हूँ। 4 किताबें उनकी भी लिखी हैं, अजीम जंगी हीरो के नाम से। ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं एक चीज़ जो है अरवा फाउंडेशन की पहले 1-2 मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। जब वो काशिर रफीक साहब ने शुरू किया तो फिर उसमें कुछ उन्होंने ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सीधी सी बात है, जिसकी वजह से मैं अरवा से पीछे हट गया। हालांकि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस सिलसिले में मैं एक सजेशन अपने तजर्बे की बना पर जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है जो ट्रस्ट के हवाले से। हम लोग जो है ना पैसे देते नहीं है किसी फाउंडेशन को। जितने मेंबर बने सबसे पहले वो कंट्रीब्यूट करें ताकि अपना एक फंड कायम हो। जब भी जमा हो तो जिसको ज़रूरत पड़े फ़ौरन उसी फंड में से दें और फ़ौरन काम क्लियर हो। दूसरे नंबर पे आप एक छोटा सा मशवरा है, फर्ज करो ये आप आखिरी मीटिंग है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। पिछले महीने की पूरी रूदार जो कुछ आपने किया वो इस मीटिंग के सामने रख दिया जाए कि हमने इस महीने में ये किया और अगले महीने में हमारा ये टास्क है। इस तरीके से आप इसको लेके चलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये मेरी सजेशन है। थैंक यू साहब, बड़ी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिल रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस पर अमल करने की। अभी चाय का भी टाइम है, लेकिन मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा कोई बात करना चाहे तो वेलकम, क्योंकि बाकी लोग तो आए हुए हैं सारे।
बात हुई थी कि हमारी वाइफ का जो है ना रिटायर्ड एयरफोर्स से उनका भी PF हॉस्पिटल में होना चाहिए ट्रीटमेंट, उसका क्या किया? ठीक है, PF में ट्रीटमेंट बच्चों की भले उधर हो, लेकिन मिशन की इधर होनी चाहिए। एक्चुअली 2 था जिसमें वो गाँव की मेंबरशिप का मनोवर साहब ने भी और हमने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई हुई है सर सिग्नेचर होने वाले सर, लेकिन आज महमूद साहब आए नहीं, उनके पास पड़ी है वो भेज देंगे। लेकिन ये वाली मनोवर कंबोज साहब की मैं आज ड्यूटी लगाता हूँ कि इस पर वर्क करके इनसे पूछ के एक एप्लीकेशन तैयार करें और इंशाल्लाह रनिंग वीक में हम जो नेक्स्ट वीक में हम इसको सेंड कर देंगे। मनोवर साहब, सब दोस्तों ने बड़े अच्छे मशवरे दिए हैं और अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हज़रत साहब ने बड़े तफसील से माशाल्लाह दरस कुरान दिया, उसमें कुछ बातें मैं ऐड, तो वो इस अरवा के साथ नहीं चल सकता। जो ये सोचेगा कि मैं अरवा के लिए क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो इंशाल्लाह इस अरवा के साथ चलता रहेगा। हर बंदा ये सोचे कि मैंने दूसरे भाई की खिदमत करनी है, दूसरी भाई की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, दूसरे भाई के मैं काम आना है, तो इंशाल्लाह सब भाई जब ये सोचेंगे तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हल होगी। और इस तरीके से फंड्स की बात की गई है, यकीन माने हम जब एयरफोर्स में आए थे तो वही AC2 AC1, हमारी सोच अभी तक वहाँ से नहीं निकली, हम वही AC2 हैं। चीफ ब्रांड अफसर रिटायर्ड हो गए, AC2 से हम नहीं निकले। यकीन माने अरवा ने, मैं ये पिछला जो अगस्त गुजरा है ना, ये इससे पिछले अगस्त में अरवा की पहली मीटिंग है मैंने अटेंड की, वहाँ मैंने एक पॉइंट जो ना रखा था, जब बंदा नया आता है ना उसको थोड़ा सा ये ना फीलिंग होती है कि यार यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने, मेरी जो फीलिंग थी वो यही थी कि देखिए ये जो अरवा चल रही है इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। एक घर, एक कोई भी अदारा, कोई भी सिस्टम बगैर फंडिंग के नहीं चल सकता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने उसमें कोशिश की और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अरवा के पास एक अच्छी अमाउंट अरवा के पास मौजूद है फंडिंग के सिलसिले में। और जैसे सुल्तान साहब ने फरमाया कि वो जो फंडिंग है वो हमारा सदका जारिया है इंशाअल्लाह, वो तो कोई बंदा उसमें से उसको मिस यूज नहीं कर सकेगा 1 रुपए का। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि हमने वो मिनिमम 1000 जो ना वो रखा हुआ है कि 1000 हमने मंथली जमा करवाना है और वो ज़ाया नहीं जाएगा। एक बंदा मस्जिद बनवाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, लोग उसमें नमाजें पढ़ते हैं और उसको, उस बंदे को जिसने वो बनवाया, जिसमें उसने एक ईंट भी लगाई, उसको उसका अल्लाह ताला अजर देगा। इस तरीके से हम अगर मंथली ये 1000 मिनिमम है, बाकी जो जितना भी वो अफोर्ड कर सकता है उसका अपना है, लेकिन वो इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड में होगा। और हमारी फर्दर प्लानिंग ये है कि इंशाल्लाह हमने उस फंड से कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि जिससे वो फंडिंग हमारी मज़ीद इंक्रीज़ भी हो और अरवा की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके वो काम भी है। तो वो हम इंशाल्लाह उसका पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं कि भाई किस भाई ने कितनी अमाउंट दी है, और वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड कायम रहेगा और किसी की पर्सनल यूज़ में नहीं वो आएगा। इस तरीके से पिछले महीने एक दोस्त था हमारा, उसकी बेटी की शादी थी, उसके लिए हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैश जो है ना वो पेमेंट उस भाई की जो है ना वो शादी में दी है। तो जिसने दी है, जिस भाई ने दी है, अल्लाह ताला उसको अजर देगा। इस तरीके से काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। लेकिन यहाँ अक्सरियत जो आई है ना वो यही कहती है कि जी वहाँ हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, वहाँ हमारे लिए क्या हो रहा है। भाई देखें, किसने करना है? हमने करना है, हमने सब ने मिल के करना है। जब हम देखें ना यहाँ इस वक्त जितने भी भाई हैं, ठीक है, ये जब सब मिल के एक सोच लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह की मदद होगी। चंद बातें थी, अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की जी। अकाउंट नंबर हम इतनी फिजिकली करते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर भी हमने अरवा का नहीं है, अरवा का नहीं है, जो भी जिस तरह कर रहे हैं फिजिकली मतलब कि अभी अर्शद साहब ही कर रहे हैं या अमर साहब कर रहे हैं।
तो वैसे नहीं भैया आप इजी पैसा वाला क्या नहीं वो तो हो सकता है ना, जो है मेंबर, उसका जो मेंबर है ना उसके पास भिजवाने, उसके पास रजिस्टर है जो प्रेसिडेंट भी चेक करता है, सेक्रेटरी भी चेक करता है सारे। सर इजी पैसा आपका ठीक है, ग्रुप में ना आप शेयर कर दें, कोई फंड देना चाहे तो ये तरीके से फंड पे कर। ठीक है, आज का थैंक यू वेरी मच। मतलब है कि मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान में जासुल्ला सही साहब की, वो अपने ख्यालात का इजहार करें सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, तो वो इस गुलदस्ते के हिस्सा बने और हमें ये तौफीक दी अल्लाह ताला ने कि हम इकट्ठे हो सके, इकट्ठे बैठ के बात सकें। जो सर ने बात की कि इनकी बड़ी अच्छी बात थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, कोई भी चीज़ हो उसकी एक चीज़ होती है कि जी एक चीज़ उसकी क्लिक कर जाती है और वो चीज़ हमें निकालनी है अपने अंदर से कि वो कौन सी चीज़ है। वैसे तो सबसे बेस्ट ये है कि हम ये जो गैदरिंग करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि जस्ट हैव टू गपशप, इसका और कोई गैदरिंग का और कोई मकसद नहीं है। गैदरिंग और ये जो जितनी भी हम यहाँ पे रिफ्रेशमेंट करते हैं इसकी हम फंडिंग में से नहीं करते, वो सुल्तान साहब की एफर्ट्स हैं। सुल्तान साहब अपने घर से भी ये चीज़ें तैयार करवा के लाते हैं और 2-4 बंदे हैं जो खुद पे करते हैं, उसी में से होती है वो। हम तो ये गैदरिंग होती है हमारी गपशप के लिए। इसमें जो अरवा फाउंडेशन आज तक चल रही है उसमें बहुत से काम किए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा सुल्तान साहब को कि सुल्तान साहब मेन करता धरते हैं इसमें। नो डाउट के एज ए प्रेसिडेंट मैं हूँ इसका, लेकिन अगर सुल्तान साहब को और मुजम्मल साहब को या 1-2 बंदों को निकाल दिया जाए तो अरवा फाउंडेशन नहीं है। तो मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से कि जब तक आप दिल से और जुनून से ये काम करने की कोशिश नहीं करेंगे अरवा के लिए तो ये यहीं रह जाएगी। गिल साहब ने बात की कि हम आज भी वही हैं मेंटली तौर पे, तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है कि मेंटली तौर पे आज भी एसी हैं या अप्रेंटिस हैं या एयरफोर्स के वही एयरमैन हैं। एक्चुअल हमने 18 साल गुजारे, 25 साल गुजारे ही उसी माहौल में, वो हमारे रच बस गया। अब हमने निकालना है उसको बाहर, वो निकालने के लिए हमें माहौल चाहिए या अपने अंदर एक ताकत चाहिए। जब तक हम वो अपनी ताकत नहीं निकालेंगे हम नहीं निकल पाएंगे उस माहौल से। बाकी जो हमारी अरवा फाउंडेशन की बहुत से काम हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मौका दिया, बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से काम करते भी हैं, जो आते पाइपलाइन में वो भी करते हैं। और हमारा मोटिव है कि अगर हमें अच्छे दोस्त साथ मिल जाए, हमारे साथ टीम का हिस्सा बने, तो हम कोई एक अच्छी पता लगे कि जैसे फाउंडेशन और 4-5 फाउंडेशन हैं, वो डॉक्टर साहब क्या नाम है उनका जिनसे हमने मीटिंग उनकी फाउंडेशन का, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो जो एसपी रिटायर्ड हुए शायद। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारा एक नाम हो जिसमें हम रहें ना रहें, अरवा फाउंडेशन कलाए, और अरवा फाउंडेशन में नाम में जब भी आएगा तो आप सब लोगों का नाम आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसके लिए 2-4 बंदे तो कम से कम निकले, हर मीटिंग में से 1-2 बंदा ऐसा हो जो डिवोटेड हो, जो कहे कि ये काम आप मेरी ड्यूटी लगाएं, मैं किया करूँगा, आप छोड़ दें। तो सुल्तान साहब के ऊपर बहुत से बोझ है, मैं सुल्तान साहब के लिए क्लैप्स करना चाहूँगा कि इनके बगैर बहुत से काम ये खुद ही कर रहे होते हैं। और ये नहीं है कि ये फारग हैं या इनके पास बहुत सा टाइम है, ये नौकरी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी पढ़ रहे हैं, वहीं से वो अपने पैसे भी लिखाते हैं, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पाया अरवा फाउंडेशन को जितना सुल्तान साहब ने दिया। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से इस गुलदस्ते को खुशबूदार रखें, और वो तभी रह सकेगा कि आप में से कुछ लोग निकल के डिवोटेडली इसके लिए काम करें। जैसे फारूक साहब को अभी कहा गया कि आप IT को देखें, तो इसको ज़रूर देखिएगा भाई। और एक बार फिर आप सब लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको जो खुशो खुरम रखे, आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए। और एक मेरी ये गुजारिश है कि हम इस्लाम का नाम तो सब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, हर बंदा हम चाहते हैं कि हम इस्लाम को देखें, लेकिन इस्लाम के साथ साथ अखलाकियात भी हमें देखनी, इस्लाम का ही हिस्सा है। हम कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर किया करें ज़िंदगी में जो हमारे लिए हमें हो गया, फ़ख्र हो गया, मैं काम करता हूँ। उसमें आप झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, किसी का वैसे पत्थर उठा के दिन में आप साइड पे कर सकते हैं। बहुत से काम हैं जो होते छोटे से हैं, लेकिन अल्लाह ताला के आगे वो बहुत उसका अजर है। अल्लाह ताला हमें खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, और आप सब लोग को हंसता बसता रखे।
हाँ जी, इन कैमरा प्लीज अभी, यस सॉरी, वेट कीजिएगा। हाँ जी, वन मोर, वेट, हाँ जी, यस, गुड, वन मोर, थैंक यू जी। और ये बहुत अच्छा अमन कमेटी के लिए हम दोबारा से